Hello students, I am your class teacher Rohit Yadav. Today we will see the PDF number 9, chapter 2nd. Topic is the use of microorganism, and we will first see where do microorganism live. Microorganism may be single celled, example bacteria, some algae and protozoa. These are the example the microorganism which have only single cell in their body. Are multicellular, many algae and fungi. Except one algae, Chlamydomonas, more than algae, more algae are multicellular except Chlamydomonas. In the fungi, except yeast is a fungi which is the unicellular, and all fungi are multicellular except the yeast. They live in all type of environments, including ice cold, very cold climate, ice cold climate, hot spring, desert and marshy land. They are also found inside the body of animal including humans. और ये जो माइक्रोनिज़म्स हैं किसी और एनिमल्स की बॉडी में भी रहती हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस. Microorganism categorized into two groups. Beneficial are friendly microorganisms, harmful or foul microorganisms. Beneficial are friendly microorganisms. We will first see beneficial and friendly microorganisms. Microorganisms are used for various purposes. They are used in the preparation of curd, bread and cake. आप सभी लोग अपने घर में देखते होंगे कर्ड को बनते हुए, और ब्रेड और केक भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके ही बनाया जाता है. तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. दे आर आल्सो यूज इन द क्लीनिंग अप इन्वायरमेंट. फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील, रिमेन ऑफ एनिमल्स फेसेस एंड ब्रोकन डाउन इनटू द हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस. The biodegradable material which is prepared in agriculture field and animal fecal matters are decaying by the help decaying by the microorganisms. Example fungi and bacteria. और ये इसको डिके करने के बाद बहुत छोटे मटेरियल में तोड़ देते हैं और जिसका यूज फिर से प्लांट्स कर सकते हैं. बैक्टीरिया आर आल्सो यूज प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन. एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स, मेनी एंटीबायोटिक्स. इन एग्रीकल्चर एंटीबायोटिक्स एंड हार्मोन्स. फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन हार्मोन्स आर वेरी लार्ज स्केल मेड अप बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया. In agriculture, they use increasing soil fertility by mixing up nitrogen. Example is a rhizobium and azotobacter bacteria which help increasing to soil fertility by the mixing of nitrogen. Because these bacteria are use environmental nitrogen. In the environments, the nitrogen present 78%, but no can use by any plants these nitrogen. The plants use only in the form of compounds. The plants use nitrogen in the form of compound, not use elemental form N2. So these bacteria take the environment nitrogen and change in the compounds, nitrate and nitrites. So plants, they can use nitrate and nitrites. Microorganisms have been used for the production of alcohol since age. बहुत पुराने समय से माइक्रोऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है अल्कोहल बनाने में.
आप कितनी भी पुरानी मूवियाँ क्यों न देख लें, चाहे आप रामानंद सागर का रामायण ही क्यों न देख लें, उसमें भी देखेंगे तो कुंभकर्ण के लिए मदिरा लाई जाती है और इस मदिरा का प्रोडक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ही किया जाता रहा है तब भी। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, कर्ड और ब्रेड बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। कर्ड कंटेन several microorganisms of these. The bacterium Lactobacillus promotes the formation of curd. It multiply in milk. It multiply means increasing number and convert it into curd. It multiply into milk and converts it into curds. ये 2 बार हो गया है, रिपीट हो गया है, इसको एक ही बार लिखिएगा। ये मिल्क में मल्टीप्लाई करता है और उसे कर्ड में चेंज कर देता है। आपको एक और जानकारी दे दें, ये मिल्क की प्रोटीन को सेमी डाइजेस्ट कर देता है, थोड़ा सा पचा देता है उसको, और ये मिल्क के लैक्टोज शुगर को, उसमें एक शर्करा पाई जाती है जिसके कारण मिल्क मीठा लगता है, उसको लैक्टिक एसिड में चेंज कर देता है। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़। बैक्टीरिया का यूज पनीर बनाने में भी किया जाता है। अलग अलग बैक्टीरिया का अलग अलग फ्लेवर देती हैं ये, जो इनसे बनाया जाता है बैक्टीरिया का यूज करके। बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर। और इडली और डोसा का जो बैटर बनता है आटा का, उसको भी बैक्टीरिया की हेल्प से बनाया जाता है। And one word is fermentation. What is the fermentation? It is a chemical process by which molecules such as glucose are broken down anaerobically. ये जो रेस्पायरेशन नहीं होता जिसमें ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी निकालते हैं, वो रेस्पायरेशन कहलाता है। एकदम रेस्पायरेशन जैसा ही, लेकिन जो रेस्पायरेशन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं एनर्जी बनाने के लिए, उसमें ये उसको CO2 और H2O तक नहीं ले जाते, क्योंकि ये ऑक्सीजन का यूज नहीं करते। तो ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को लेते हैं, तोड़ते हैं। इनका पर्पज़ ये आपके लिए प्रोडक्ट बनाना नहीं है, इनका पर्पज़ अपनी एनर्जी बनाना है। लेकिन हम हैं जो पहचान लेते हैं अपनी मतलब की चीज़ों को और उसको लेते हैं। इट इज़ द केमिकल प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल सच एज ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं एनएरोबिकली। इट मीन्स विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन। फर्मेंटेशन इज द बेस of use of yeast into baking industry for the making bread, pastries and cake. फर्मेंटेशन आधार है बेकिंग इंडस्ट्री का, जो ब्रेड, पेस्ट्रीज और केक बनाते हैं। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। आप अपने घरों में सिरका रखते हुए जरूर देखे होंगे, मम्मी जो रस को लाती हैं या जो गन्ने से जूस निकलता है उसको रख देती हैं और कुछ दिन बाद वो एक अच्छे से एसिड बन के तैयार हो जाता है, सिरका, एसिटिक एसिड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही यूज करके वो बनता है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल जो है, एल्कोहल और वाइन में मैं डिफरेंस बता देता हूँ। एल्कोहल और वाइन और एसिटिक एसिड, ये तीनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से बनते हैं। एल्कोहल वो होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एल्कोहल बनाता है और फिर उसको अलग अलग मशीनों के द्वारा और कंसंट्रेट किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है। वाइन वो होता है जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाती है तो उसको बस वहाँ से निकाल लिया जाता है, उसको प्यूरिफाई और कंसंट्रेट नहीं किया जाता है, उसको बस थोड़ा सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना रह जाएं उनको मार दिया जाता है और ऐसे ही पैकिंग हो जाती है, तो वो वाइन है। ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन। बाकी दोनों में एल्कोहल ही है, इसमें इसका मतलब कि एथिल एल्कोहल C2H5OH ही है, कोई अलग अलग चीज़ नहीं है। ईस्ट, अगला देखेंगे, ईस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन।
ईस्ट का यूज करते हैं बड़े लेवल पर अल्कोहल और वाइन बनाने के लिए। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रो इन नेचुरल शुगर पर ग्रो करते हैं। प्रेजेंट इन ग्रेन, दानों में, लाइक बार्ली, जौ, राइस, चावल, क्रस्टेड फ्रूट जूस, या कोई फ्रूट जिसमें जूस हो और उसको पीस दिया जाता है उसमें ग्रो करके अल्कोहल और वाइन का प्रोडक्शन करते हैं। नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप ज़रूर कर लेंगे। अगर नहीं कर पाते हैं तो कमेंट करके हमें बताएं, आपकी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू।